मिस मैंने सारे अच्छा, okay. डायग्राम्स Today we are बनाए। going to study the mammalian urinary system, which is actually composed of the two bean-shaped kidney. जितने भी mammals हैं, the kidney is the main organ of excretion in all the mammals, like man and rabbits. Aisha, Sameen, Inshira, अच्छा Inshira का तो खैर problem है. Aisha और Sameen, please on your cameras so that I should continue with the lecture. Okay, so the main excretory organ in the mammals are a pair of kidney. ठीक है, बीन शेप पेयर ऑफ किडनी जो है मैमल्स के अंदर मौजूद है, और ये एंड दीज आर प्रेजेंट एट द डॉर्सल साइड ऑफ द बॉडी. बॉडी के डॉर्सल साइड पे ये मौजूद है, नियर द वर्टेब्रल कॉलम. ओके, on each side of vertebral column. Acha, these pair of kidney are embedded in the mass of fat. These pair of kidney are embedded in the mass of fat. I hope you people are noting down the points. Miss, please repeat. I said that the kidney is the main excretory organ in all the mammals. For example, man and rabbits. The kidneys are bean shaped and they are embedded in the fat mass, या mass of fat. The kidneys are attached to the dorsal body wall. Miss, थोड़ा Each आहिस्ता side, आहिस्ता बोलो, please. It अच्छा is बेटा. bean shaped. The kidneys are bean shaped. Embedded. Embedded means enclosed. Embedded in mass of fat. Kidneys are attached to dorsal body wall. Dorsal माने पिछली तरफ. Dorsal body wall. One on each side of vertebral column. Vertebral column के जी. मिस आपने एक डॉल्सल क्या कहा था? मैंने क्या कहा था? डॉर्सल. डॉर्सल माने पिछली बैक साइड पे, पिछली तरफ. जो किडनी होती है वो आपकी बॉडी के बैक साइड पे मौजूद होती है. जो आपका वर्टेब्रल कॉलम है, एक दो इसके जो किडनीज हैं वो इसके वर्टेब्रल कॉलम के दोनों तरफ मौजूद होती हैं. एक तरफ और एक तरफ. ठीक है. वन ऑन ईच साइड ऑफ वर्टेब्रल कॉलम. अगर ये आपका ये बीच में आपका वर्टेब्रल कॉलम है तो एक किडनी इधर आ गई वर्टेब्रल कॉलम के, और एक किडनी इस तरफ आ गई वर्टेब्रल कॉलम के. वन ऑन ईच साइड ऑफ वर्टेब्रल कॉलम. Okay, it's in man, the left kidney is slightly higher than the right kidney. You can see in the diagram, the left kidney is slightly higher
then the right kidney. And it is present in the waistline, you can see. Noted? Yes, miss. And what about others? Done? Yes, miss. Okay. Okay, at the center of the kidney, there is a depression. At the center of the kidney, there is a depression which is known as hilus. ये देखें, ये डिप्रेशन आ गया. दिस इज नोन एज हाइलस. अब ये डिप्रेशन वो जगह है जहां से रीनल वेन, रीनल आर्टरी और साथ में यूरेटर वगैरह सब यहीं पर मौजूद होते हैं. ये देखिए यहाँ पे ये रीनल वेन आ गई, रीनल आर्टरी आ गई और यहीं से जो है यूरेटर निकल रहा होता है. At the center of the kidney, there is a depression known as hilus. It is that point at which renal artery, renal vein, and ureter emerges, joins, connected to the kidney. अच्छा, ये जो रीनल वर्ड है ना, RENAL, रीनल वर्ड जो है वो रिप्रेजेंट करता है किडनी को. The word renal represents the kidney. RENAL. अब रीनल आर्टरी जो हो गई, renal artery brings blood from the heart to the kidney. Renal vein, it takes blood from the kidney to the heart. ठीक है. और जो थर्ड मैंने आपको बताया यूरेटर, ureter is also a tube like structure which travels downward. Miss, repeat कर. रिपीट करूं? कौन सी बेटा, कौन सी लाइन रिपीट करूं? Miss, renal artery वाली. बेटा आर्टरी तो जो आर्टरी और वेन का फंक्शन क्या था? आर्टरी जो होती है वो हार्ट से ब्लड लेकर आती है, यही था ना, ऑर्गन की तरफ. और वेन Yes. जो होती है वो ऑर्गन से ब्लड लेके जाती है. हम वी हैव डिस्कस दिस थिंग. ऐसा ही है. जी मिस. ठीक है. अच्छा, इसके अलावा जो है वो यहाँ से निकल रहा है ट्यूब लाइक, किडनी से emerges a tube like structure. This tube like structure is known as ureter. This tube like structure is known as ureter. Ureter is the tube in which the urine travels from the kidney to the urinary bladder. The urine passes from the ureter to the urinary bladder. The urinary bladder is an elastic muscular bag
Urinary bladder is an elastic muscular bag that stores the urine for some time. ठीक है, यूरेटर तो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर था जिसका काम क्या था, वो दोबारा बोलें क्या? मिस दोबारा बोल दीजिएगा, यूरिनरी ब्लैडर। हाँ बिल्कुल बता रही हूँ, यूरिनरी ब्लैडर मैं बता रही थी आप लोगों को कि किडनी से यूरिन लेकर यूरेटर जो है वो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, वो ये यूरिन को पहुंचाते हैं यूरिनरी ब्लैडर में। अब यूरिनरी ब्लैडर क्या है? यूरिनरी ब्लैडर एक इलास्टिक मस्कुलर बैग है, बैग लाइक स्ट्रक्चर है जिसके अंदर यूरिन कुछ देर के लिए स्टोर रहता है। It stores the urine for some times, and there is also a muscular structure which is known as sphincter muscles. Sphincter muscles, ये रहा बिल्कुल just beneath the bag. बैक के बिल्कुल नीचे जो है स्पिंक्टर मसल्स मौजूद हैं। इन स्पिंक्टर मसल्स का क्या काम होता है? इट इन स्पिंक्टर मसल्स का काम ये होता है कि ये जो बैग है इसको ये क्लोज रखते हैं। जो यंग वंस होते हैं, बच्चे होते हैं, उनका जो होता है इन स्पिंक्टर मसल्स के ऊपर कंट्रोल नहीं होता इतना ज्यादा। जैसे ही उनका ये यूरिन बैग यानी कि यूरिनरी ब्लैडर फिलअप होता है, उनके ये मसल्स रिलैक्स कर जाते हैं जिसकी वजह से यूरिन यूरेथ्रा में पास कर जाता है। यूरेथ्रा इज द ओपनिंग। लेकिन जैसे जैसे आप बड़े होते जाते हैं, ग्रोन अप होते जाते हैं, तो क्या होता है, ये स्पिंक्टर मसल्स स्ट्रॉन्ग भी हो जाते हैं और साथ में इनके ऊपर होल्ड भी आ जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि जब अपनी विल से इसको ओपन एंड क्लोज करते हैं ताकि यूरिन रिलीज हो सके यूरेथ्रा के अंदर। Okay, I'm repeating all the points again. The main excretory organ in mammals such as man and rabbit are a pair of kidneys. ठीक है? These kidneys are embedded in the mass of fat. They are present at the dorsal body wall. Each kidney lie each side of vertebral column. The kidneys have depression at the center, which is known as hilus. Hilus is that point from where the vein artery, the renal vein, renal artery, and the ureter are connected to the kidney. The ureter are a tube-like structure that carries the urine from the kidney to the urinary bladder. The urinary bladder stores the urine for some time. Beneath the urinary bladder, there is muscles known as sphincter muscles. When this sphincter muscle relaxes, it releases the urine, which passes out from the body through urethra. Achha, when we look at the longitudinal section of kidney through a hand lens, so we can see two regions, basically two regions in the kidney. In the mammalian kidney, the outer darker region, which is known as cortex, and the inner lighter or paler region, which is thick, known as medulla. जब LS of kidney को देख रहे हैं तो हमें two regions दिख रहे हैं, the outer darker region known as cortex and the inner paler region known as medulla.
अच्छा, अब ये जो मेडुला है इसके अंदर हमें ये कॉनिकल pyramid लाइक स्ट्रक्चर नजर आते हैं, कॉनिकल pyramids लाइक स्ट्रक्चर नजर आते हैं, ठीक है। कॉनिकल स्ट्रक्चर ऑलमोस्ट ये 12 to 16 कॉनिकल स्ट्रक्चर होते हैं एक किडनी के अंदर, और they are known as pyramids. These conical structure are known as pyramids. अच्छा, these pyramids are projecting into a funnel shape structure. आप अगर आप इनको देखो तो ये बिल्कुल funnel का shape आपको दिख रहा है कि they are projecting into a funnel shape structure and they are projecting towards renal pelvis. ये जो ये point है ये क्या है? renal pelvis. बेटा आप सबकी वीडियोस ऑफ क्यों हो गई? गर्ल्स, आर यू देयर? ये जो रीनल पेल्विस है, रीनल पेल्विस, ये रीनल पेल्विस जो है ये आगे जाके यूरेटर की शक्ल इख्तियार कर लेता है। तो ये जो यूरेटर, इसको हम ये भी कह सकते हैं कि दिस रीनल पेल्विस इज द एक्सपेंडेड फॉर्म ऑफ यूरेटर इन द किडनी। ये जो हमने आगे ये यूरेटर जो हमने देखा ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, ये किडनी के अंदर क्या होता है? एक्सपेंडेड होता है, और इसे क्या कहते हैं? क्या कहते हैं इसे? व्हाट वी कॉल इट? रीनल Miss पेल्विस। renal pelvis. जी, रीनल पेल्विस, RENALPELVIS, रीनल पेल्विस। ठीक है। अच्छा, ये जो मेडुला है, इस मेडुला के अंदर जो होता है नेफ्रॉन्स के कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स मौजूद होते हैं। कॉर्टेक्स में बेसिकली अगर हम यहाँ देखें, बता रही the basic unit of kidney, the basic kidney cell is known as nephron. This is the whole structure of nephron. The kidney is formed by millions of nephron. One single kidney cell is known as nephron. This is the structure of nephron. Nephron में अगर आप देखें तो ये ऊपर आपको कैप्सूल या कप शेप स्ट्रक्चर नजर आ रहा है। ये कप शेप स्ट्रक्चर है जो आगे जाकर ट्यूब फॉर्म बनाता है, कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्स होती हैं, ठीक है। ये कप दिस इज नोन एज कैप्सूल। कैप्सूल के नीचे कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स हैं। कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स आगे जाकर जो है यू शेप ट्यूब के अंदर फॉर्म हो जाती हैं। इस यू शेप ट्यूब को कहते हैं लूप ऑफ हेनले। लूप ऑफ हेनले, ये लूप ऑफ हेनले बेसिकली जो है ये मेडुला के अंदर मौजूद होती हैं, ठीक है। इस वजह से जो है इसका जो कलर जो है वो पेल हमें पेल रेड की फॉर्म में लग रहा होता है।
और ये जो डार्कर रीजन हमें दिख रहा होता है वो यहाँ पर सारे जो बोमेन कैप्सूल्स हैं, कैप्सूल्स जो है वो नेफ्रॉन के, वो इस कॉर्टेक्स रीजन के अंदर होता है। बाकी ये इंटरनल स्ट्रक्चर मैं आप लोगों को नेक्स्ट क्लास में और पढ़ाऊंगी, वरना आप लोग जो है ना ये बाकी चीजें भूल ना जाए। आज हमने क्या क्या पढ़ा, पूरा एक जो एक्सक्रीटरी सिस्टम है उसको हमने देखा,